Hey guys, how are you? I hope you all will be fine and well at your homes. So, today we are going to crack the last topic of the chapter 8th for class 10th, Introduction to Trigonometry, and that topic is trigonometric identities. I will give you my introduction that my name is Harshit Sikka. I'm an educator on this channel, and this is that topic of the chapter from which students used to fear very much because the questions which used to come from this topic somewhat tricky questions. So but after watching this video you will be going you will be having fun when you will go to when you will solve the question related to this topic. Okay, so let's get started with a very beautiful quote. Once you start replacing your all negative thoughts with the positive ones, you will start having the positive results. This is a very beautiful quote. This quote actually says the truth of the life. Because I will take your examples for pre-boards for any boards you are in class 10th actually I assume that. So आप लोगों को भी चिंता होगी हमारे बोर्ड्स होने वाले हैं, हम बोर्ड्स में फेल ना हो जाएं, कईयों के प्री बोर्ड्स होने वाले हैं तो उन्हें चिंता होगी हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई है, हम फेल हो जाएंगे. बट डोंट टेक इट सो मच सीरियस गाइस, इतना सीरियस मत लीजिए. जस्ट रिमूव योर ऑल नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम माइंड कि हम फेल हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं आता. इसकी बजाय आप सिर्फ क्या करें, स्टार्ट डूइंग थिंग्स एंड एनालाइजिंग देम. कुछ करना शुरू करो. अपने दोस्तों को ये नहीं बताना आप लोगों ने कि मुझे कुछ नहीं आता. आप ऐसा करो कि अपने दोस्तों को ये बता सको मैंने कुछ करा आज. सो यू हैव टू रिप्लेस दैट नेगेटिव थॉट विद द पॉजिटिव वंस कि मैं कर सकता हूं, मैं जरूर करूंगा. आई कैन एंड आई विल एब्सोल्युटली. And that time you will start having many positive results. You will see that how you will score above 80%, above 90% in your pre-boards and in boards even also. Okay, so let's get started after this beautiful quote with the topic identities. So basically there are three trigonometric identities which are to be learned in class 10th. These three identities are basically sine square theta plus cos square theta equal to 1, secant square theta is equal to 1 plus tan square theta, and last identity cosecant square theta is equal to 1 plus cot square theta. There are many sub identities from every identity, like sine square theta into LHS and shift that cosecant square theta to the RHS. You will get sine square theta is equal to 1 minus cos square theta. So in this way you will have many sub identities, like for first you will have two sub identities, for next one also two. So you have to just remember all the sub identities and main identities to crack the questions. So let's get started with the questions. Your first question says 1 minus sine square theta into secant square theta equal to 1. In this topic trigonometric identities you are just going to have the questions which you have to prove the LHS equal to RHS mainly. जो भी क्वेश्चंस आते हैं इसी टॉपिक पर आते हैं कि आपको LHS दिया है और आपको LHS के इक्वल प्रूव करना है. तो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ पहला क्वेश्चन. तो देखिए क्या दे रखा है आपको दे रखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये दे रखा है. आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी ही मैंने अभी आपको बताई, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. क्या करिए, कोस स्क्वायर थीटा को रखिए LHS में एंड साइन स्क्वायर को भेज दीजिए RHS में. आपको मिल जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको यहाँ पर दे रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो आप सिंपली क्या करने वाले हैं, रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बाय कोस स्क्वायर थीटा, और ये कर देखिए मैजिक हो जाएगा, क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा. आपको करना है कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा. यू हैव अराइव्ड एट दिस इक्वेशन नाउ. Now what you will do, you have to remember the topic trigonometric ratios. In trigonometric ratios we have learned that secant square theta is equal to 1 by cos theta. So secant square theta is equal to 1 by cos square theta. So just you have to write that cos square theta will be as it is into secant square theta की जगह हम लोग लिख देंगे 1 by cos square theta. And just
By putting this, you will get that cos square theta and this cos square theta will get cancelled because they're of same value, and hence you have arrived at this 1. What you have to prove? So you have proved the question. And next question is also very simple. यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग रही है सिंपली कोस स्क्वायर थीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ गाइस मैं. कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये लास्ट आइडेंटिटी है सिंपल. कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा. जो आपको दे रखा है अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इस जगह हम लोग पुट करेंगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा. और फिर से जाइए टॉपिक रेशियोज पर, वहां से आपको पता चलेगा कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1/sin स्क्वायर थीटा. सो 1/कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा. मतलब आपको मिल जाएगा बेसिकली कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. और ये आपकी आइडेंटिटी है नंबर 1 आइडेंटिटी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर होती है. तो ये भी बेसिकली इजीली प्रूव हो जाएगा. सो आई होप आपको समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए. तो आइए आगे बढ़ते हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज tan theta plus sin theta upon tan theta minus sin theta इक्वल टू sec theta plus 1 एंड अपॉन में sec theta minus 1. प्रूव करने का क्वेश्चन है, बहुत इजी है. इसके लिए आपको रेशोज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो रेशोज़ का टॉपिक है वो आइडेंटिटीज़ में काफ़ी हेल्पफुल रहता है. फर्स्ट स्टेप, tan थीटा को एक्सप्रेस करिए इन टर्म्स ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा. यू विल गेट दैट sin theta by cos theta plus sin theta अपॉन में सिंपल sin theta by cos theta माइनस sin theta. अब देखो ऊपर में यहाँ साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन. तो मैं क्या करता हूँ, इस साइन को ले लेता हूँ बाहर कॉमन. तो देखो अब क्या मिलेगा हमको अगले स्टेप में. साइन थीटा को मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है. मुझे मिला 1/cos थीटा प्लस 1 इसके पूरे अपॉन में साइन थीटा 1/cos थीटा minus 1. This sin theta will get cancelled and you will be left with 1/cos theta plus 1 and 1 minute guys, 1/cos theta minus 1. Now just get back to the topic ratios. 1/cos theta equal to secant theta. Just put there that 1/cos theta is equal to secant theta और आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको यही प्रूव करना था. secant theta plus 1 एंड गाइज अपॉन में था 1/cos theta minus 1. सो वी विल गेट secant theta minus 1. और ये हमको प्रूव करना था और ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं. विद दिस यू विल गेट 2 marks. दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 2 marks. So yes guys, you can expect this question for either 2 marks and or 3 marks. So let's move to the next question guys. So the question says cot theta minus tan theta you have to prove is equal to 2 cos square theta minus 1 upon sin theta into cos theta. This is a very easy question guys. Expand cot theta and tan theta in terms of sin theta and cos theta, you will get the answer. So cot theta is equal to cos theta by sin theta. मैं गाइज आगे नहीं लगा रहा हूँ थीटा, आप लोग ज़रूर लगाएं एग्जाम में, मुझे सॉल्व करना है भी आपको दिखाना है इसीलिए. ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमको मिलेगा दैट 1 मिनट गाइज, मैं ज़रा लेकर दिखाता हूँ. साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ऊपर चलेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. आप लोग सॉल्व करके देखेंगे तो ऐसे मिलेगा आप लोगों को. अब अगर मैं बताऊं अगले स्टेप में क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग इवेलुएट करिए आइडेंटिटी के बेसिस पर. ये हमको मिलेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन कोस रहने दीजिए. अब बस सिंपल क्या करिए,
ये इनको सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कोस स्क्वायर, 1 मिनट गाइस, प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन इंटू कोस। ओके गाइस, आपको ये मिल जाएगा। सो गाइस कोसेकेंट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। नाउ दिस कोस थीटा प्लस कोस थीटा कर देंगे, सो दिस विल गिव अस 2 कोस स्क्वायर थीटा and this -1 upon sine into cos, and this what we have to prove, we have arrived. So hence proved, golden words, hence proved, you have to write there, and with this you will get 3 marks. This question used to come for 3 marks in boards. Next question guys, also easy one. This is NCERT question. I will write here, 1 minute guys. This is your NCERT question. So what you have to prove, under root of 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta is equal to secant theta minus tan theta. This is very simple guys, just लिख लीजिए 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta. इन क्वेश्चंस में याद रखिए आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है साइन थीटा माइनस कोट थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस टैन थीटा, मतलब आपको प्रूव करना है थिंग जो आपके आनी चाहिए इन माइनस। तो हम लोग इसको पूरे अंडर रूट को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा से और डिवाइड भी कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा से। सिंपल, आप हर क्वेश्चन में यही केस देखेंगे, ठीक है। अदरवाइज बिल्कुल सिंपल कह सकते हैं कि आपको इसके न्यूमरेटर को करना पड़ेगा रेशनलाइज, आप लोग कह सकते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग अगर मेरे नज़रिए से देखें तो आप जो मेरा वे है कि उसे बना सकते हैं कि आपको देखना है कि आप प्रूव करना है, इफ़ इट इज़ माइनस तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए सेम टर्म को, ठीक है। तो अब देखो ऊपर वाले को 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा विल गिव अस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एब्सोल्युटली। एंड नीचे हमको मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड इफ आई विल मूव ऑन फर्दर सॉल्विंग इट, देन ऊपर हमको मिलना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। दिस इज आवर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से हमको मिल जाएगा ये कि कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है, यस। एंड नीचे वाला, ओ आई एम सॉरी गाइज, ये हमारा होना चाहिए 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, सॉरी गाइज, दिस मस्ट बी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होना चाहिए, और ये होना चाहिए आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है गाइज। 1 मिनट, आई हैव टू रब इट, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, आई टुक इट फॉर अनदर वे। So this is 1 minus sin theta का whole square and this is upon of 1 square minus sin square theta. So हम नीचे वाले जो है न्यूमरेटर है उसको एज इट इज़ रहने देंगे न्यूमरेटर को, दैट रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हम लेंगे, दैट 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमको देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम इन दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, मतलब इस स्क्वायर को जो है हम इसको अंदर रखेंगे, बाहर नहीं करना, ठीक है। अब ये स्क्वायर जो है इस रूट को कर देगा कैंसिल, ठीक है, कैंसिल हो गया रूट। अब हमको ये सिंपल बाहर मिल जाएगा, दैट दिस इज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये बहुत ईजी है गाइज आगे प्रूव कर पाना, क्योंकि आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग इस कोस थीटा को 1 के नीचे भी लगा दोगे और इसके नीचे भी लगा दोगे गाइज, ठीक है। कैसे, आप लोग लिखिए 1 माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा, मतलब आपने जो इनका
एक कॉमन लिया हुआ था हम लोगों ने, एलसीएम लिया हुआ था, उस एलसीएम को इन दोनों के नीचे डाल दिया, वो करके आपको सिंपली मिल जाएगा दिस इज सेक थीटा बनाएगा 1/cos थीटा एंड साइन थीटा माइनस टैन थीटा विल गिव अस साइन थीटा बाय cos थीटा। सो यही हमको प्रूव करना था गाइस दैट secant थीटा माइनस tan theta. So with this we have proved this question. If you have understood till now then please hit the like and also comment that आपको कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद आया guys. So now moving towards next question, and this is our last question for this video guys, for identities. This is a star mark question from the topic, star mark question, and for sure, for not sure I will come up with one more video for trigonometric identities if it is required, because identities से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इननंबरेबल क्वेश्चंस हैं, कुछ लेवल 2 के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ लेवल 1 के क्वेश्चंस भी हैं, और जहाँ हमने क्वेश्चंस करे हैं दे आर ऑल लेवल 1 क्वेश्चंस, बट लास्ट क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं कि लेवल 2 का हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चंस है, ठीक है, लंबा है इसीलिए इसका जो सोल्यूशन होने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर आप भी देखिए और हम भी करते हैं। तो यू आर गिवन दैट साइन, मैं ए नहीं लगाता हूँ, सिंपल लिखता हूँ, साइन प्लस कोस अपॉन साइन माइनस कोस, ओवरऑल प्लस में साइन माइनस कोस अपॉन साइन प्लस कोस। सिंपल क्या करिए, इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम बनने वाला है साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, दैट मीन्स इनका एलसीएम बनने वाला है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओके, ऐसा करने पर आपको ये मिलेगा कि आप लोग नीचे लिख देंगे साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, सिंपल। इसको उधर मल्टीप्लाई करो और इस टर्म को उधर मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट साइन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का भी होल स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगी टर्म, ठीक है। अब बस आपको इसको ही सॉल्व करना है आगे, तो आपको लिखना है साइन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर क्या देगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन कोस। ओके, प्लस करेंगे इसमें हम लोग क्या, ये अपॉन में नहीं है, मैंने प्लस में थोड़ा स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस 2 साइन कोस। ओके गाइस, ये आपको मिल जाएगा, अपॉन में आपका रहेगा साइन स्क्वायर, 1 मिनट गाइस, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, चलो यहाँ तक समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को आइडेंटिटीज के जो क्वेश्चंस हैं वो समझ आने लग गए हैं गाइस, अगर आपको अब तक समझ आया है तो। अब आगे देखिए, मैं आपको इधर समझाता हूँ पहले। तो आपको मिला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इस वाली इक्वेशन में भी, और जो ऐड के बाद वाली इक्वेशन है, इन दोनों में हम लोग लिख देंगे, इसको 1 इवेल्युएट करेंगे, जो हमको पता है आइडेंटिटीज में कि हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसको एज इट इज़ 1 डाल दीजिए यहाँ पर, और फिर आपको इसका मैजिक दिखेगा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। सो आपको मिलेगा 1 + 2 साइन कोस प्लस में 1 - 2 साइन कोस अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। ओके गाइज, तो मैं सिंपल आपको अगले स्टेप में लिखवाऊंगा कि आपको लिखना है 1 + 2 साइन कोस प्लस 1 - 2 साइन कोस। अभी जो ब्रैकेट्स मैंने लगाए थे हटा दीजिए, और अब सिंपल यहाँ पर लिखिए साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। अब ये +2 साइन कोस माइनस 2 साइन कोस आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और हमको मिल जाएगा 1 + 1 2 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन प्रूव करने के लिए थी। इस क्वेश्चन में आपको 3 कंडीशंस प्रूव करनी है, मतलब 3 RHS पर पहुंचना है आपको, और पहला RHS हम लोग पहुंच चुके हैं। पहला RHS है, इसको प्रूव करना है 2/sin स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a, और वो हम लोग जो अपना है फर्स्ट कंडीशन उस पर हम लोग पहुंच चुके हैं, 2/sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a।
अब इसको अगला कैसे प्रूव करेंगे? अगला प्रूव करने के लिए सिंपल करिए कि कोस स्क्वायर को इवेल्युएट कर लीजिए फर्स्ट आइडेंटिटी के बेसिस पर। वो कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है अपना 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो जस्ट अब माइनस को हटाइए और सॉल्व करिए और आपको अगली क्वेश्चन भी सॉल्व होती हुई दिख जाएगी। दैट दिस इज साइन स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर आपको मिल जाएगा अब दैट 2/2 साइन स्क्वायर माइनस 1। चेक करते हैं क्या ये हमको प्रूव करना था दूसरा इक्वेशन, जो हमारी एक और कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन बिल्कुल सही, यही कंडीशन थी हमारी 2/2 साइन स्क्वायर माइनस 1। और लास्ट कंडीशन है अपनी 2/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर। लेट्स चेक इट ऑल्सो कि क्या हम लोग इसको भी प्रूव कर पाते हैं, और एब्सोल्युटली वी विल बी एबल टू डू दिस। ओके, अब हमको एक ही चीज़ बची हमारे पास कि हम इस साइन स्क्वायर को जो है इवेल्युएट करें, तो वही कर देते हैं 2/2 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा करने पर हमको मिल जाएगा 2/2 माइनस 2 cos square minus 1. 2 minus 1 will give us 1. So we will arrive at our last condition also, that 2/1 minus 2 cos square theta. So guys, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और आपने सच में मेरी वीडियो के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मज़ा लिया होगा। और जो मैंने क्वाट बताया आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में, से भूलिएगा मत, दैट यू हैव टू रिप्लेस ऑल द नेगेटिव थॉट्स ऑफ योर माइंड विद द पॉजिटिव वंस, एंड यू हैव टू स्टार्ट डूइंग with a very positive attitude, and then you will start having many positive results in your life. The study apart, you should be mentored. आपको होना चाहिए मेंटर, मतलब आपको किसी का एडवाइस लेने चाहिए अपने बड़ों की, जो मतलब जो कि बहुत ज़्यादा बुरे कंडीशन से गुजर चुके हैं लाइफ के, और उन्होंने फिर अपने आप को संभाला है। तो अपार्ट फ्रॉम स्टडी आपको ये सब भी करना चाहिए। एंड फिजिकल हेल्थ इज़ ऑल्सो अ वेरी बेसिक इशू फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं होती। सो आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करते रहना चाहिए। So guys, it's time for bye bye. So thank you people, because we are here only because of you people. Thank you for your support, and keep supporting. And if you like the video, please hit the like button. Thank you guys. Have a good day. Do like, share, and subscribe to my channel if you haven't. And we are also coming up with the part 2 of this video. If it is required, then also please make sure that you will check that video. Bye bye guys, good day people.